देखो सैडल पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ द गेम. फर्स्ट वी विल सी इट्स डेफिनेशन. इक्विलिब्रियम पॉइंट और सैडल पॉइंट. A saddle point or equilibrium point of a payoff matrix is that position in the payoff matrix where the maximum of row minima coincides with the minimum of the column maxima. Coincide means both are them are equal. The payoff at the saddle point is called the value of the game and is obviously equal to the maximin and minimax values of the game. क्योंकि कोइंसाइड कर रहा है तो दोनों बराबर हो गया और वही सैडल पॉइंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ द गेम. Thus, kth position of the payoff matrix Aij will be a saddle point if and only if AKR is equal to maximum over I, minimum over J Aij, and this is the same as minimum over I, maximum over J Aij. The saddle point and hence the value of the game need not be unique. हो सकता है कि एक से ज्यादा हो जाए. We shall denote a value of the game by nu. The importance of the saddle point arises from the fact that in general the optimum play consists in sticking to the strategies which correspond to the saddle point. To solve a game, we therefore merely need to look for the saddle point of the payoff matrix. यानी कोई गेम को सॉल्व करने के लिए हमें उसका सैडल पॉइंट खोजना पड़ेगा पेऑफ मैट्रिक्स का. इफ इट एग्जिस्ट द गेम इज सॉल्व. अगर ये हमें सैडल पॉइंट मिल जाता है तो गेम को कहेंगे गेम सॉल्व हो गया. बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पेऑफ मैट्रिसेस डू नॉट पजेस एनी सैडल पॉइंट. लेकिन ज्यादातर जो पेऑफ मैट्रिसेस हैं उनका कोई सैडल पॉइंट नहीं मिल पाता है. इन जनरल द वैल्यू ऑफ द गेम न्यू सेटिस्फाइज मैक्सिमिन वैल्यू लेस देन और इक्वल टू न्यू लेस देन और इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू. ये हम लोग देखेंगे आगे थ्योरम में. We shall denote the maximum value of the game by new lower bar and the minimax value of the game by new upper bar. These values are also called the lower value and the upper value of the game respectively. A game is said to be a fair game if new bar is equal to 0. अगर new lower bar low upper bar दोनों 0 हो, बराबर हो तो कहेंगे game is fair. And a game is said to be strictly determinable if new lower bar is equal to new upper bar and both of them equal to new. तो ये दो कंडीशन देखना है. अगर 0 आ जाता है तो फेयर गेम, अगर दोनों बराबर है न्यू के तो कहेंगे स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल. सी द थ्योरम. लेट Aij be the m by n payoff matrix for a two-person zero-sum game. Two-person zero-sum game में Aij एक m by n टाइप का payoff matrix है, m रो है n कॉलम है. If new lower bar denotes the maximin value and new upper bar the minimax value of the game, then new upper bar is greater than or equal to new lower bar. That is minimum over j in 1 between 1 and n, maximum over I between 1 and m Aij is greater than or equal to maximum over I 1 to m, minimum over j 1 to n Aij. So this is the theorem. Let us see its proof. देखो, we have maximum of Aij over I is equal to 1 to m is greater than or equal to Aij for all j is equal to 1 to so on n. तो इसका जो मैक्सिमम होगा वो Aij से बड़ा होगा या बराबर हुआ. एंड मिनिमम ओवर j varying from 1 to n Aij is less than or equal to Aij. I here I is varying from 1 to m. तो मिनिमम जो होगा Aij का I हो गया हमारा, I stands for rows and j stands for column. Let the above maximum be attained at I is equal to I dash and the minimum be attained at j is equal to j dash. Then maximum Aij, I is greater than or equal to 1 less than or equal to m, it will be Ai dash j. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हमको I is equal to I dash पे मिल जा रहा है एंड मिनिमम Aij j is equal to 1, j is varying from 1 to n is equal to Aij dash. क्यों? क्योंकि हमको मिनिमम मिल जा रहा है j is equal to j dash पर. Then we must have this Ai dash j is greater than equal to Aij greater than equal to Aij dash. See ये डैश यहाँ पे मिसप्रिंट है, j पे डैश होना चाहिए था.
for all A is equal to 1 to M and J is equal to 1 to N. From this, we get minimum over 1 less than or equal to 1 less than J less than or equal to N, AI dash J greater than or equal to AIJ. इसमें मिनिमम लगा देना है, greater than or equal to maximum 1 less than or equal to I less than or equal to M, AI J dash for all I is equal to 1 to 1 M. Therefore, minimum over J maximum over I Aij is greater than or equal to maximum over I minimum over J Aij. फर्स्ट और लास्ट खाली ले लेना है, ये हमारा निकल गया. इट मीन्स न्यू अपर बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू लोअर बार. सो दिस थ्योरम इज प्रूव्ड. नाउ अब एक रूल हम लोग को दिया हुआ है, किस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. अ रूल फॉर डिटरमिनिंग ए सैडल पॉइंट. इसको याद कर लेना है. We now summarize the procedure of locating the saddle point of payoff matrix as follows. See, there are 3 steps. Step 1, select the minimum element of each row of the payoff matrix. जो payoff matrix का हर रो में जाना है और जो minimum element है उसको select कर लेना है and mark them star. और जो minimum है उस पर हम लोग को star लगा देना है. Select the greatest element of each column of the payoff matrix. तो payoff matrix का हर column में जाना है और जो greatest element उसको select करके मार्क देम, ये एस्टेरिक लगा देना है. इफ देयर अपीयर्स एन एलिमेंट इन द पेऑफ मैट्रिक्स, मार्क दिस स्टार एंड दिस एस्टेरिक बोथ. अगर ये दोनों है किसी एलिमेंट में, द पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट इज ए सैडल पॉइंट ऑफ द पेऑफ मैट्रिक्स. यानी कि वो जो एलिमेंट है जिस पोजीशन पे होगा उसी को बोलते हैं हम लोग सैडल पॉइंट ऑफ द पेऑफ मैट्रिक्स. सी द एग्जांपल 901. डिटरमिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 2-person zero-sum games are strictly determinable and fair. First हो गया. Second, give optimum strategies for each player in the case of strictly determinable games. तो 2 पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट A and दूसरा क्वेश्चन है B. See the solution of A. The payoff matrix for player A is, this is your player A, player B. This is रो प्लेयर ए का स्ट्रेटेजी A1 A2 से, प्लेयर बी का स्ट्रेटेजी B1 B2 से. 5002, दिस इज 5002. अब हमको रो मिनिमा देना है. इस 5 और 0 में मिनिमम हो गया 0, यहाँ पे स्टार लगा दिया, 0 दे दिया. 0 और 2 में मिनिमम हो गया 0, यहाँ स्टार लगा दिया, यहाँ 0 ले दिया. इसी तरह से कॉलम में 5 और 0 में हमारा मैक्सिमम हो गया 5, तो 5 पे एस्टेरिक लगा दिया. दिस इज कॉलम मैक्सिमम, यहाँ 5 लिखा. और 0-2 में मैक्सिमम है 2 पे एस्टेरिक लगा दिया, यहाँ पे 2 दे दिया. देखो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें कि दोनों सिंबल है, स्टार और एस्टेरिक दोनों नहीं है. तो इसका मतलब ये हमारा स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल नहीं हो गया. ठीक. द पे ऑफ मार्क्ड विथ स्टार रिप्रेजेंट द मिनिमम पे ऑफ इन ईच रो and those marked with asterisk represent the maximum payoff in each column of the payoff matrix. The largest component of row minima represents new lower bar, means maximum value, and the smallest component of column maxima represents new upper bar, means minimax value. Thus, obviously, new lower bar will be 0. New lower bar means जितना minimum है उनका maximum. तो minimum 2 है हमारे पास, maximum हो गया उनका 0. And new upper bar is 2. मीन्स मिनिमैक्स वैल्यू जितना मैक्सिमम है 5 और 2 मैक्सिमम था उनका मिनिमम, सो इट इज 2. सी बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल. सिंस न्यू लोअर बार इज नॉट इक्वल टू न्यू अपर बार, द गेम इज नॉट स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल. ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट, द पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए, प्लेयर बी, B1 B2 उसका स्ट्रेटजी. A1 A का A1 A2 है, रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमम. 0 और 2 में मिनिमम हो गया 0, यहाँ पे स्टार लगा दिया, 0 लिखा. -1 4 में मिनिमम हो गया -1 इधर लिखा, यहाँ स्टार. सिमिलरली कॉलम मैक्सिमम 0 में मैक्सिमम हो गया 0, तो 0 यहाँ लिखा, यहाँ पे एस्टेरिक बना दिया. 2 और 4 मैक्सिमम हो गया 4, यहाँ पे एस्टेरिक बना दिया. सी देयर इज ओनली वन एलिमेंट जिस 0 which has both the marks star and asterisk, so its position will be used for the solution. Since the payoffs marked with star represent the minimum payoff in each row, and those marked with asterisk the maximum payoff in each column of the payoff matrix. Therefore, we have new lower bar is equal to maximum value, this is your 0, and new upper bar is equal to minimax value, so this is your again 0. As new lower bar is your new upper bar, it is equal to 0.
द गेम इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल एंड फेयर। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों 0 है और के बराबर है। Optimal strategies for players A and B are given by A1 B1. This position means this position is A1 B1. So optimal strategy will be A1 B1. So this is the solution of this problem. There is another problem. अगर तुम लोग अभी कोई क्वेरी है तो मुझे पूछो, उतना करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी को? कोई क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। एक और एग्जांपल हम लोग के पास है, एग्जांपल 902, बढ़िया एग्जांपल है। डिटरमिन द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ P एंड Q, स्मॉल p और q। देखो ये पे ऑफ मैट्रिक्स में स्मॉल p एंड q दे आर अननोन, दैट विल मेक द पे ऑफ एलिमेंट A22, ये A22 मींस दिस पोजीशन 7, ए सैडल पॉइंट फॉर द गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स Aij इज गिवन बिलो। ये प्लेयर B है, प्लेयर A है, तो हमको ये सैडल पॉइंट यहाँ आ रहा है A22 पर, हमको P और Q की वैल्यू चाहिए। देखो सॉल्यूशन, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। सपोज हमें P और Q का वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं, एंड डिटरमिन द मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स वैल्यूज ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स। फॉर दिस हमको ये पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए बनाना पड़ेगा। A1 A2 A3 उसका स्ट्रेटजी, B का B1 B2 B3, रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमम। रो मिनिमा 2 4 5 में मिनिमम हो गया 2, 10 7 Q में मिनिमम हो गया 7, इग्नोर दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ Q। 4 P8 में मिनिमम हो गया 4, दिस वन इग्नोर द वैल्यू ऑफ P। सिमिलरली कॉलम मैक्सिमा 2 10 4 में मैक्सिमम 10, 4 7 P में मैक्सिमम 7, 5 Q8 में मैक्सिमम 8। तो द मैक्सिमम वैल्यू मीन्स जो मिनिमम है उनका मैक्सिमम, इनका मैक्सिमम हो गया 7, एंड द मिनिमैक्स वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है 3, इनका मिनिमम, दिस इज आल्सो 7, is also 7. Thus there exists a saddle point at position 2 2. This is your 7, this is your position 2 2, यानी कि सैडल पॉइंट यहाँ पे तुमको मिल गया। तो यहाँ पे हमको अगर सैडल पॉइंट चाहिए तो दिस इम्पोजेस द कंडीशन ऑन P एज P शुड बी लेस देन और इक्वल टू 7। क्यों? क्योंकि इसमें से हमको मैक्सिमम 7 देना है, इसमें से ये 7, तो जब P 7 से छोटा होगा उसके बराबर होगा तभी इसका मैक्सिमम हमको 7 मिलेगा। तो दिस इज द बार ऑन P एंड Q एज Q शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7। सिंस यहाँ पे रो मिनिमा हमको लेना है, तो अगर Q 7 से बड़ा होगा उसके बराबर होगा तभी ये 7 होगा मिनिमम, तो Q शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7। Hence the required range of values of P and Q is 7 should be less than or equal to Q and P should be less than or equal to 7। तो ये इस तरह से ये प्रॉब्लम हो गया। तो इतना तुम लोग के लिए आज का सफिशिएंट है, इतना तुम लोग पढ़ो इसको।